A very good morning to class 3rd. As you know, in yesterday's class, we have completed our chapter number 12, right? This also we have done exercise 12.8. So now, after this exercise, today we are going to do the worksheet of chapter 12, or you can say worksheet 12. Today we will do worksheet 12. Right. In this worksheet, the first question is convert into paise. First question, rupees 63.50 convert into paise. So how we will convert it? First step is rupees 63 multiply with 100 पैसे प्लस जहाँ पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपका प्लस 50 पैसे, राइट. सो दिस बिकम 6300 पैसे प्लस 50 पैसे. सो ये कंप्लीट क्या आएगा आपका 6350 पैसे. Have you remembered this? We have done in exercise 12.1 conversion of rupees to पैसे, right? कैसे कन्वर्ट करेंगे? रुपीज़ मल्टीप्लाई विद 100 एंड प्लस पैसे. क्लियर? फर्स्ट. नाउ सेकेंड, रुपीज़ 7630 पैसे convert into रुपी. किस में कन्वर्ट करना है आपको? रुपी में. सो व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट दिस पैसे इनटू रुपी, जब आप पैसे को रुपी में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100. डिवाइड बाय 100, राइट. देखो लास्ट की 2 ज़ीरो हैं तो हम लास्ट की 2 डिजिट्स लेते हैं. रुपीज़ 76.30. क्लियर दिस? बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है. सिर्फ रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करना था, जिसमें आप क्या करोगे? फर्स्टली रुपी मल्टीप्लाई विद 100 एंड पैसे प्लस. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कन्वर्ट पैसे टू रुपी, डिवाइड बाय 100. लास्ट में कितनी ज़ीरो है नीचे? 2. तो लास्ट की 2 डिजिट 1 टेंस पॉइंट लगा दो एंड आगे लिखो रुपीज़. क्लियर? नाउ द थर्ड वन, सी पार्ट, add. Now we have to add the money. Rupees 24.95, rupees 34.85 and rupees 43.80. So what we do? Firstly we arrange them. 9, 5, then rupees 34.85 and then rupees 43.80, right. Now add 5 plus 5 10, 1 goes carry. 9 plus 1 10, 10 plus 8 18, 18 plus 8 26, 6 and 2 will be carry here. Point. 4 plus 4 8, 8 plus 2 10, 10 plus 3 13, 1 goes carry.
2 plus 3, 5, 5 plus 4, 9, 9 plus 1, 10. Rupees 103.60. Clear this question number 3rd. Now come to the D part, that is subtraction. डी पार्ट में क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करना है. Subtract rupees 2346 from rupees 7326, right? So now subtract. I hope you can subtract and write the answer yourself. E part, subtract rupees 50 from the sum of, मीन्स फर्स्टली क्या करना है, हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है. फ्रॉम द सम ऑफ, सम मीन्स ऐड 0, 6 plus 4, 10. अगेन 1 goes decimal, 1 plus 3, 4, 4 plus 1, 5, 3 plus 6, 9. रुपीज़ 95 में से आपको 50 को सब्ट्रैक्ट करना है. What will come here? 5 and 9 minus 5, 4. So your answer is rupees 45. What will be the answer? Rupees 45. Now F part, multiply the sum. See, in F part, multiply the sum means फर्स्टली आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करो. थ्री प्लस 6, 9, 3 plus 2, 5 and 3 plus 7, 10. जो आपका सम आया है इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विद 8, राइट? एंड देन यू गेट द amount. Clear? This also multiplication you have to do yourself. Now G part, Karan had rupees 45 in his purse. His father gave him 3500 more. यानी उसके फादर ने उसको और पैसे दिए. He put this amount also in the same purse. So how much does he have in his purse now? Right? So देखो, firstly Karan had money. How much? Rupees 4500. His father gave. How much? Rupees 3500. क्लियर? उसके बाद उन्होंने पूछा है कि हाउ मच डज ही हैव इन हिज पर्स नाउ. इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है बेटा, टोटल मनी. सो टोटल मनी वेयर प्लस रुपीज़ 0, 0, 5 plus 5, 10, 1 goes carry, 4 plus 3, 7, 7 plus 1, 8. So total money equals to rupees 8000, right? You can write this also. He have rupees 8000 in his purse. Clear? H part is a packet of biscuit cost rupees 7.50,
what is the cost of 6 such packets? Now see, price of one, cost of एक बिस्किट पैकेट की कॉस्ट गिवन है बेटा 1 biscuits, cost of 1 biscuit packet equals to rupees 7.50. You have to find the cost of 6 biscuits packets. Simply means multiply with 6, right? So if you want, you can multiply. 0 6 5 are 33, 6 7 are 42, 42 plus 3, 42 plus 3 45, and here come point. So answer is rupees 45. Clear both the question? फर्स्ट जी पार्ट में तो क्या था बेटा कि आपको टोटल मनी फाइंड करनी थी. एच पार्ट में क्या था, 1 बिस्किट पैकेट की कॉस्ट गिवन है आपको, राइट. एक बिस्किट पैकेट की कॉस्ट कितनी है 7.50, और आपको 6 की फाइंड करनी है. 1 2 मैनी, एक की गिवन है, ज़्यादा की पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे वहाँ मल्टीप्लाई. अगर यहाँ पे ज़्यादा गिवन होती और आपसे एक की पूछी जाती तो क्या करते हैं आप, डिवाइड. Is it clear to everyone? Now, I part. See, the cost of 7 gifts is rupees 8,995. Now देखो cost of 7 gifts. Rupees 8,995. You have to find the cost of one gift. Means divide by 7. देखो इस पार्ट में क्या है कि ज़्यादा गिवन है और आपसे एक की कॉस्ट पूछी गई है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड, राइट. जैसे एच पार्ट में था, एक की गिवन थी, ज़्यादा की पूछा था आपसे. ज़्यादा मीन्स 2 से, एक से ज़्यादा. अगर 2 की भी पूछते हैं तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 की पूछते तो 3 से मल्टीप्लाई करते, राइट. अब यहाँ पे नंबर्स, जितने नंबर की कॉस्ट गिवन है उसको, उस प्राइस को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक उसकी कॉस्ट मिल जाएगी आपको. क्लियर माई पॉइंट टू ऑल? सो एयर आपको डिवाइड करना है रुपीज़ 8,995 बाय 7. नाउ द नेक्स्ट इज जे पार्ट. एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट रुपी. रुपीज़ 52.70 पैसे प्लस रुपीज़ 38.20. ये राउंड ऑफ करना है आपको नियरेस्ट रुपी. तो देखो नियरेस्ट 1 रुपी करना है तो हम किसको कंपेयर करेंगे, पैसे को, विद 50, राइट. तो 70 ज़्यादा है 50 से, तो ये क्या हो जाएगा, रुपीज़ 52 प्लस 1 इक्वल्स टू रुपीज़ 53. क्या आएगा, रुपीज़ 53. सेकेंड में रुपीज़ 38.20, इसको कंपेयर करो 50 से. 50 ग्रेटर है तो ये क्या रहेगा आपका, सेम रुपीज़ 38. नाउ ऐड करना है, इट मीन्स एस्टिमेटेड सम रुपीज़ 53 प्लस रुपीज़ 38. So 3 plus 8 11, 1 goes carry, 5 plus 3 8 and 1 9.
So estimated sum of these number is rupees 91. Clear? Now the next part, K part. Estimate by rounding of nearest to 10 rupee. Rupees 9,338 minus rupees 5,956. Nearest 10 rupee. Right? So firstly हम nearest rounding off करते हैं. वंस टेंस यहाँ पे आपको चेंज करना है, तो ये डिजिट चेक करोगे आप. अभी देखो 8 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, हम इस डिजिट में +1 करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा आपका रुपीज़ 93 + 1 4, और ये नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में. राइट. नेक्स्ट 5956. वंस टेंस यहाँ आपको करना है, तो अब ये चेक करो. 6 5 से बड़ा है. राइट. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, +1, एंड दिस बिकम 5960. क्लियर. नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. सो सब्ट्रैक्ट में हम क्या फाइंड करते हैं बेटा, डिफरेंस. राइट. नाउ subtract it. Five nine six zero 14 minus 6 8. Here become 12. ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा. 12 minus 9 3, 8 minus 5 3. Rupees 3,380. So clear this K part. After this K part, one bill is given to you in the worksheet. That is, क्या बोलते हैं उसको, कैश मेमो. सो देखो आपके बिल का जो मेन फर्स्ट उसमें हेडिंग क्या थी, कैश मेमो. फर्स्टली वन बॉक्स, here it is written cash memo. Then name of the shop, ABC Stationery Mart. Right. Then date of today. After this, items, the thing you purchased. After item, quantity. Right. Then rate, rupees and पैसे. So firstly देखो, prepare a cash memo for the following purchases. The purchases are pencils. So firstly we will write items: pen, notebook, eraser and scale. Right, these are the things. Now quantity. How many pencils are there? 5. How many pen? 6. Notebook 10. Eraser 4 and scale 1. After this, rate. See, rate you can see from here. The price of pencil, rupees 5. Then pen, rupees 10. Notebook, rupees 30. Eraser,
rupees 5 and scale rupees 12, right? So see, this is the rate list prepared. After this, rupees. So how you will find the rupees? रुपीज़ के लिए क्या करना है बेटा, आपको क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करना है। देखो रुपीज़ 5 जो है वो एक पेंसिल का प्राइस है और आपने कितनी पेंसिल्स ली हैं, 5। सो कितना प्राइस हो गया, ₹25, राइट, ₹25। 6 पेन है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹10। 10 multiply with 6, it becomes ₹60। नोटबुक प्राइस, 1 नोटबुक प्राइस 30 और कितनी है, 10, क्वांटिटी इज 10। सो 30 multiply ₹10, it becomes 300, right? Next, eraser. 1 eraser ₹5 and how many, 4, 5 4s are 20. 1 scale only, so ₹12. If you want you can multiply also here also, 12 ones are 12. Clear? After this you have to prepare total. टोटल मीन्स क्या करना है आपको, यू हैव टू ऐड ऑल द अमाउंट्स। 5, देखो आप इसको सेपरेटली राइट डाउन करके भी कर सकते हो, पैसे नहीं है इसके अंदर, सो चॉइस आपकी है बेटा। इफ़ यू वांट यू कैन राइट 0 एंड इफ़ यू डोंट वांट देन नो नीड टू राइट, अ कंप्लीट चॉइस इज़ योर्स। अगर आपके पास जो रेट लिस्ट गिवन है उसमें पैसे में नहीं है अमाउंट, तो अमाउंट हमारे पास पैसे में नहीं आएगा। तो देखो अब आप इसको ऐड कैसे करोगे, 5 + 0 5, 0 0, 5 + 2 7, देन 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11 and 1 3 + 1 4, ₹417. Clear the bill. You will put the date of today here, right? I hope by this it is clear to everyone how to make the bill. See बेटा, आप यहाँ तक तो इसको करेक्टली बना लेते हैं, बट रुपीज़ पे आप इसको मिस्टेक करते हैं। रुपीज़ पे आपको रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, बट रुपीज़ के प्लेस पे आपको क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करना है। Clear? By this our chapter number 12 is over today, right? So on Monday be ready for the test of chapter 12. After this our next topic is of chapter 13, which is about the data handling. See, I think at some points आपने कुछ जो है वो सेकेंड क्लास में स्टडी किया हुआ है। डाटा हैंडलिंग में क्या करते हैं, जैसे अभी आपने ये बिल बनाया, ऐसे हम बिलिंग के डाटा को टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? एक प्रॉपर तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। सो दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड फॉर टुडे योर होमवर्क इज रिवाइज चैप्टर 12.